بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم. اور یوٹیوب چینل حاصل علم, آپ تمام کا خیر مقدم ہے. ہمارے یوٹیوب چینل حاصل علم پر لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور پسند آئے تو جو ہے اسے شیئر ضرور کیجئے گا. چلیے اسٹوڈنٹس, 10ویں جماعت سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول کا تیسرا سبق کیمیائی تعاملات اور مساواتیں سیکھتے ہیں. کیمیکل ریئیکشن اینڈ ایکویشنز پارٹ 1. اس پہلے حصے کے اندر ہم تعارف دیکھیں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کریں گے کہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے, کیوں جو ہے اس کو ہمارے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے اور کس طریقے سے مساواتیں بنائی جاتی ہیں. تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ, حاصل علم اور علم حاصل کرتے رہیے گا. چلیے شروع کرتے ہیں ہم ہمارے سبق کا انٹروڈکشن. جو نام ہے ہمارے سبق کا, اس کا نام ہے کیمیائی تعاملات اور مساواتیں. دیکھیے بچوں, کیمیائی, اگر آپ اپنے اطراف کے اندر دیکھیں تو بہت ساری تبدیلیاں ہم کو دکھائی دیتی ہیں. ان تبدیلیوں کے پیچھے دو طرح کی تبدیلیاں ہم کو ہوتی ہیں, ایک طبعی تبدیلی اور دوسرا کیمیائی تبدیلی. طبعی تبدیلی جس کے اندر جو ہے جز تبدیل نہیں ہوتے, صرف اپنی حالت کو بدلتے ہیں. جیسے برف کا پانی بننا, یہاں پر جو ہے صرف ٹھوس سے وہ مائع میں تبدیل ہوا ہے, یا پانی کا جو ہے بھاپ بننا, لیکن اس کی جو کیمیائی خصوصیت ہے, جو اس کی اندرونی خصوصیت ہے یا اس کا ذائقہ ہے, وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم طبعی تبدیلی کہیں گے. کیمیائی تبدیلی جس کے اندر جو ہے اس کی خصوصیت, اس کا ذائقہ اور اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے, اسے ہم کیمیائی تعاملات کہیں گے. پیارے بچوں, اگر آپ اپنے اطراف کے اندر نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سارے ایسی مثالیں ملیں گی جہاں پر آپ تبدیلی دیکھتے ہیں, چاہے وہ تبدیلی ہو یا چاہے آپ کیمیائی تبدیلی. ذرا چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جو آم ہوتا ہے, وہ کچا آم ہمارے سامنے ہے, وہ کیا ہوتا ہے, کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کی حیت, اس کی جو ہے خصوصیت بدل جاتی اور وہ جو ہے پک جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے کیمیائی تبدیلی ہوئی. کیمیائی تبدیلی دوبارہ اسے ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کھٹا جو ہے کیری, وہ آم کے اندر, میٹھے آم کے اندر تبدیل ہو گئی, تو یہاں پر کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے. یہ روزمرہ زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. پیارے بچوں, سائنس جو ہے روزمرہ زندگی میں ہونے والے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس سے ہم کو سیکھنا ہے. اس سبق کے اندر ہم یہی کریں گے. چلیے نیکسٹ اگر مثال دیں ہم, تو دوسری مثال ہے دودھ کی. دودھ چونکہ پھیکا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ تبدیلی ہو جائے اس کے اندر, یعنی یہ دہی کے اندر جو ہے تبدیل ہو جائے, دودھ کا دہی اگر بن جائے, تو یہاں پر جو ہے کیمیائی تبدیلی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. اس کا ہم نے بغور مشاہدہ کیا ہے, روزمرہ زندگی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیمیائی تبدیلی واقع ہوئی. اگر ہم تیسری مثال اگر دیکھیں تو دیکھیے ہمارے اطراف کے اندر لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں, اور اس لوہے کی چیز پر کیا ہوتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے. یہ زنگ لگنے کی وجہ کیا تھی, کیمیائی تعاملات تھا. جب لوہے نے آکسیجن کے ساتھ عمل کیا تو آئرن آکسائڈ بنا اور جو ہے زنگ جو ہے تیار ہوا ہے. تو یہاں پر بھی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ کیمیائی تبدیلی ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے اطراف میں ہم کو ملیں گی. تو انہی کیمیائی تعاملات کا ہم کو جو ہے مشاہدہ کرنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, اور جو کیمیائی تعاملات ہم دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, جب ہم ان کو لکھیں گے تو لکھنے کے اندر جو پریشانیاں ہم کو درپیش آتی ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک طریقہ بتلایا ہے. اس طریقے کو اگر ہم مساواتوں کے ذریعے لکھیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم تمام کیمیائی تعاملات کو سمجھ سکتے ہیں. تو بچوں, پیارے بچوں, آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھ لیا, اس سبق کو آخری تک ہمارے ساتھ بنے رہے, تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر ہونے والے
तबई तब्दीली, कीमियाई तब्दीली आपको समझ में आ जाएंगी और उससे आप बहुत अच्छी तरीके से लिख भी सकेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो के अंदर, पिछले सबक के अंदर हमने जो है चंद मालूमात हासिल की थी। ज़रा याद करते हैं कि अनासिर और मुरक्कबात के सालमों की किस्में कौन कौन सी। प्यारे बच्चों, हमने ये मालूम किया था कि अनासिर और मुरक्कबात दोनों के अंदर फ़र्क होता है। अनासिर जिसमें खुसूसियत वही की वही रहती है, तब्दील नहीं होती, यानी इसे कितना भी तकसीम किया जाए तो वो अपनी खुसूसियत तब्दील नहीं करता है। जैसे सोना, लोहा, चांदी, तांबा, ये तमाम की तमाम उनसर है जिसको हम अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। जैसे सोने को AU और जो है ऑक्सीजन को जो है O से ज़ाहिर किया जाता है, इस आलिमी हालत में होता है। हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर, पिछले सबक के अंदर मालूमात हासिल की हुई है। मुरक्कबात जो एक या एक से ज़्यादा जो है मुनासिब मिक़दार के अंदर मिलाया जाता है तो मुरक्कबात तैयार होते हैं। जैसे अगर आप पानी को ले लें तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसके नतीजे में H2O पानी तैयार होता है। ये मुरक्कबात है। तो इस तरीके से हमने देखा था। अब अनासिर की किस्में हमने देखी थी धात, अधात और धातनुमा, है ना। हमने इसकी तफसीली मालूमात जो है हासिल की हुई है। जबकि मुरक्कबात की अगर किस्में देखेंगे तो वो जो है आयोनिक कंपाउंड, यानी आयनी मुरक्कबात जिसमें आयन तैयार होते हैं। इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से जो आयन तैयार होते हैं और आयन की वजह से जो मुरक्कबात तैयार होते हैं वो आयनिक मुरक्कबात कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसकी तफसीली मालूमात आइंदा सबक के अंदर देखने वाले हैं। और उसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट कंपाउंड यानी हम गिरफ्त मुरक्कबात जिसे हम कहेंगे, इसके भी जो है तफसीली मालूमात हम हासिल करते हैं। साझेदारी के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है जिससे तैयार होने वाले मुरक्कबात जो है हम गिरफ्त मुरक्कबात कहलाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा रिवीजन। चलिए दूसरा एक सवाल आपके सामने है कि अनासिर की गिरफ्त किसे कहते हैं। आपको पता है कि अनासिर के जो है या उनसर का जो है एक मरकज़ा होता है। जैसे सोडियम ले लो आप, उसका मरकज़ा, और उस मरकज़े के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके मदार के अंदर गर्दिश करते हैं। पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार, चौथा मदार, जिसको हमने बिलज़ाब्ता जो है बिल तरतीब KLMN जो है दिया था। और हम ये भी जानते हैं कि पहले मदार के अंदर 2 की कैपेसिटी होती है, दूसरे मदार के अंदर 8 की कैपेसिटी होती है और तीसरे मदार में 18 की कैपेसिटी होती है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन उस उनसर पर मौजूद रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। जैसे यहाँ सोडियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनाई तो 2,8,1 यानी पहले मदार में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ये रिवीजन है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। तो ये अनासिर की गिरफ्त। अब यहाँ पर गिरफ्त क्या होती है? उस उनसर के आखिरी मदार में मौजूद, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो ये देने की वजह से सोडियम की गिरफ्त 1 होती है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सोडियम के ऊपर मुस्बत बरक़ी बार आता है। प्यारे बच्चों, सोडियम के ऊपर कितने मुस्बत बरक़ी बार आएंगे? +1 आएंगे, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और वो अपनी दूसरे मदार में जो 8 की होने की वजह से वो क़याम पजीर हो जाता है। उसी तरीके से अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, जैसे मिसाल जो है क्लोरीन की है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पहले मदार में 2 अगर आ जाएंगे, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 हो गए, और तीसरे मदार में 7 इलेक्ट्रॉन, 17 टोटल जो है इसके पास हो जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन पहले मदार में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब इसके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको अपना मदार मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जो वो सोडियम से लेता है। तो क्लोरीन की जो गिरफ्त होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन होती है। क्यों? क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो 1 इलेक्ट्रॉन वो सोडियम से लेता है। जैसे ही ले लेगा तो जो है उसका मदार, क्लोरीन का मदार मुकम्मल होता है, जिसकी वजह से
क्लोरीन के ऊपर मनफी बरक़ी बार चढ़ जाता है -1। इस तरीके से अनासिर की गिरफ्त की वजह से जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है और मुरक्कबात तैयार होते हैं। इसी मुरक्कबात को हम आयनिक मुरक्कबात या आयनी मुरक्कबात जो है कहते हैं। आया बच्चों समझ में? तो इस तरीके से ये अनासिर की गिरफ्त मुनहसिर होती है। चलिए, मुख्तलिफ मुरक्कबात के कीमियाई तालीमी ज़ाब्ते लिखिए। लिखने के लिए कौन सी मालूमात होना ज़रूरी है? तो उसके लिए आपको जो है उनसर का अलामत, उसकी गिरफ्त और इलेक्ट्रॉन की लेन देन या साझेदारी, ये तमाम मालूमात आपको होना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हमारे जो आगे के सबक है उसके अंदर आपको डिटेल मालूमात जो है इंशाअल्लाह मैं प्रोवाइड करके दूंगा। तो इसलिए बने रहिए और देखते रहिए हासिल इल्म। चलिए अब देखते हैं कीमियाई तामुल। कीमियाई तामुल देखने से पहले हम देखते हैं तब्दीली कितने किस्म की होती है। जैसा मैंने सबक के इंट्रोडक्शन में आपको बतलाया कि जो तब्दीली है वो 2 किस्म की होती है, एक तबई तब्दीली और दूसरा कीमियाई तब्दीली। हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जिसमें तबई तब्दीली अलग होती है और कीमियाई तब्दीली। तबई तब्दीली के अंदर जो है जायका और उसके जो है खुसूसियत तब्दील नहीं होती। जैसे मैंने जो है बर्फ़ का पानी बनना या पानी का भाप बनना, ये तबई तब्दीली हो जाएंगे। और कीमियाई तब्दीली के अंदर उसकी जो है बंदिशें टूट कर नई बंदिशें तैयार होती हैं और उसकी खुसूसियत भी तब्दील हो जाती है उस कीमियाई तब्दीली के। तो चलिए चंद मिसालें लेते हैं आपके सामने और आप पहचानिए कि वो तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली है। आर यू रेडी? यस वी गो। सबसे पहले बर्फ़ का पानी बनना। प्यारे बच्चों बताइए ये तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? यस यस फास्ट, जल्दी से। वेरी गुड, यह है तबई तब्दीली। शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मिसाल आपके सामने क्या है? खाना पकाना। हमारे अम्मी जो है खाना पकाते हैं तो जो तब्दीली उसके अंदर होती है वो कौन सी है? तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? जल्दी बच्चों फास्ट बताइए। वाह वाह, बेहतरीन, ये कीमियाई तब्दीली है। वाह ज़बरदस्त बच्चों, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं माशाअल्लाह। चलिए अगला सवाल आपके सामने कि जो फलों का पकना, जैसे एक टमाटर आप ले लें तो पहले वो हरे होते हैं, फिर थोड़ा जो है वक्फा गुजरने के बाद वो पीले हो जाते हैं और फिर वक्फा गुजरने के बाद वो लाल हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों बतलाइए ये तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? यस फास्ट। चलिए सही जवाब, आपने कीमियाई तब्दीली कहा तो ये सही जवाब है, ये कीमियाई तब्दीली है। अगली मिसाल आपके सामने जी, दूध का दही बनना। बतलाइए बच्चों, तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? जी सुनाई नहीं दे रहा, ज़रा ज़ोर से बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो घर पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, आप घर से सीख रहे हैं। तो ये क्या है? कीमियाई तब्दीली है। क्यों कीमियाई तब्दीली है? ज़रा आपने गौर किया है कि दूध का जायका कैसा होता है और जो है दही का जायका कैसा होता है? दूध या तो फीका या मीठा रहेगा, लेकिन दही की खुसूसियत क्या होती है? वो खट्टी होती है। तो यहाँ पर जो तब्दीली हुई है वो कीमियाई तब्दीली। क्या हम दही से वापस दूध हासिल कर सकते हैं? नहीं बच्चों, हम वापस दूध हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इसे कीमियाई तब्दीली हम कहेंगे। चलिए अब बतलाइए कि पानी का भाप बनना। पानी माय है जो भाप यानी गैस में तब्दील होती है, ये कीमियाई तब्दीली है या तबई तब्दीली है? जल्दी जल्दी फास्ट। यस हाँ, ये तबई तब्दीली है। वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कीप लर्निंग। तो इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं। जैसे हमारे जिस्म के अंदर जो है हम ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा का इंहिज़ाम, ग़िज़ा जो हज़म होती है वो तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? एक्सीलेंट बच्चों, ये कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि जब उस ग़िज़ा से तवानाई हासिल हो जाती है तो वापस उस तवानाई से हम ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। एक्सीलेंट। जैसे हमारे पास फर्श है, उस फर्श के ऊपर जो है अगर नींबू गिर जाए तो वहाँ पर दाग जो है पड़ जाते हैं। तो ये तब्दीली कौन सी है?
तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? फास्ट फास्ट, यस, दिस इज केमिकल चेंजेस, यानी कीमियाई तब्दीली होती है। नेक्स्ट, एक बोतल को हमने ऊपर से, कांच की बोतल को ऊपर से फेंका तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उस बोतल के टुकड़े हो गए हैं, तो तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? जल्दी जल्दी बच्चों फास्ट बतलाइए, बहुत अच्छे जो है मिसालें हैं और आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। बिल्कुल ये तबई तब्दीली है, क्योंकि कांच को हम वापस दोबारा जमा करके जो है उससे जो है वो कांच ही रहेगा, उसकी खुसूसियत, उसकी जो है हैयत तब्दील नहीं होती। तो ये मिसालें हैं जिसके ज़रिए हमने तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल की। चलिए बच्चों कुछ तलाश करते हैं, कुछ सर्च करते हैं आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, है ना। हम जो है सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक, रात में सोने से लेकर सुबह उठने तक बहुत सारे वाक़ियात रोनुमा होते हैं। उन वाक़ियात में तबई और कीमियाई तब्दीली के तजुर्बात का मुशाहिदा करके उनका इंदराज कीजिए। ज़रा देखिए तो सही कि हमारे अतराफ़ में कौन कौन से जो है तब्दीलियाँ हो रही हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? जो है नबातात कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तबई तब्दीली है या कीमियाई तब्दीली? बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो हमको मालूम होना चाहिए तबई है कीमियाई। एक लिस्ट बनाइए और उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेजिए। चलिए, कीमियाई तामुल डेफिनेशन है बच्चों, इसे अच्छी तरीके से याद कीजिए और इसको जो है एग्जाम में भी जो आपको पूछ सकता है कि कीमियाई तामुल यानी ऐसा अमल जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है और नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है। उन अशिया की नई अशिया में तब्दीली वाक़ई होती है। जो अशिया गिरफ्त टूटने के ज़रिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेती है उन्हें आमिल अशिया कहते हैं। इसके बरक्स कीमियाई अमल की वजह से नई गिरफ्त तैयार होकर जो नई अशिया तैयार होती है उसे हासिल अशिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। जैसे जो है चाय हम बनाते हैं, तो चाय के लिए हम दूध लेते हैं, शक्कर लेते हैं और पत्ती लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? दूध, शक्कर, पत्ती ये आमिल अशिया हो गई जो अमल के अंदर हिस्सा लेती है। और जैसे ही हम तीनों को मिला देते हैं और जब हम उसको हरारत देते हैं तो वो क्या बन जाती है? चाय बन जाती है। तो हमको क्या हासिल हुआ? चाय हासिल हुई। कब हुई? जब उसने दूध, शक्कर और पत्ती तीनों ने मिलकर अमल किया तो हासिल अशिया चाय हुई। तो चाय क्या है? ये हासिल अशिया कहलाती है। चलिए दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। लकड़ी या कोयला हम जलाते हैं तो उस कोयले के जलने की वजह से, उस लकड़ी के जलने की वजह से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हमको हरारत हासिल होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लकड़ी जो कार्बन है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि बिना ऑक्सीजन के हम जो है चीज़ों को जला नहीं सकते। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, जलने में मदद करती है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन जो है वो जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। तो यहाँ पर जो है ये कीमियाई तामुल अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पर इसको लिखने के लिए जो है हम तरीक़े इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दो चीज़ें हमने मिलाई, कार्बन और ऑक्सीजन, तो बीच में जमा की अलामत हम लिखेंगे। दोनों की मिलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हुआ तो तीर के निशान से हम जाहिर करेंगे कि कीमियाई तामुल किधर से किधर गया, यानी लेफ़्ट टू राइट जो है ये कीमियाई तामुल की सिमत हम बतलाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? ये आमिल अशिया है जिस दोनों ने अमल किया और हासिल अशिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल। तो इस तरीके से जो है हम कीमियाई तामुलात
جو ہے پہچانتے ہیں اور کیمیائی تعاملات انجام دیے جاتے ہیں اور ان کو لکھنے کا اس طریقے سے طریقہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم نے اس کو حرارت دی ہو تو یہاں پر مثلث کی جو ہے شکل مثلث جو ہے بنایا جاتا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے اس کو ٹھوس مائع یا گیس جو ہے وہ ہم کو لکھنا ہوتا ہے. ہم اس کا آگے جو ہے تمام تفصیلی معلومات حاصل کریں گے. بس آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ حاصل علم. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر آپ کا انٹروڈکشن لیکچر جو ہے پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیو ہم جو ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آگے کی معلومات حاصل کریں گے. کون کون سے کیمیائی تعاملات ہوتے ہیں, کون کون سے جو ہے کیمیائی تعاملات کو لکھنے کا کیسا طریقہ ہے, ان تمام کی تفصیلی معلومات صرف اور صرف حاصل علم پر آپ کو ملیں گی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. بنے رہیے, دیکھتے رہیے. کیپ لرننگ, کیپ واچنگ. حاصل علم.